اے میرے چنے ہوئے، اے اس رب کے خاص بندے جسے عرش پر بیٹھا اللہ خود دیکھ رہا ہے، رکو، ایک لمحے کے لیے سب کچھ چھوڑو اور صرف یہ سنو۔ تم یہاں تک اتفاق سے نہیں پہنچے، یہ وہ لمحہ ہے جو اللہ نے بہت پہلے تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا، کیونکہ جو بوجھ تم اکیلے اٹھا رہے ہو وہ انسانی کندھوں کے لیے نہیں بنا تھا۔ غور سے سنو، کیونکہ تمہاری روح ایک ایسی بے چینی میں جی رہی ہے جو آج ختم ہونے والی ہے۔ وہ جکڑن جو تمہارے سینے میں رہتی ہے، وہ عجیب سی بھاری پن جو تمہیں سونے نہیں دیتی، وہ بے وجہ نہیں ہے۔ کوئی ہے جو تمہارا نام ان کمروں میں لیتا ہے جہاں تم کبھی گئے نہیں۔ کوئی ہے جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری زندگی کی عمارت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اے منتخب، اللہ کے فرشتے آج تم پر حیران ہیں۔ شیطان نے اپنا پورا حساب لگایا تھا، اس نے تمہاری کمزوریاں گنی تھیں، اس نے اس دھوکے کو، اس اکیلے پن کو، اس بے عزتی کو حساب میں رکھا تھا جو ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کی جنہیں تم نے اپنا سمجھا تھا۔ اس کا ہر حساب کہہ رہا تھا یہ ٹوٹ جائے گا، یہ بکھر جائے گا، یہ کڑواہٹ سے بھر جائے گا، لیکن دیکھو تمہیں، تم ابھی بھی کھڑے ہو، اللہ کی قسم تم ابھی بھی کھڑے ہو۔ آسمان کے فرشتے تمہارے روح کے زخم دیکھ رہے ہیں اور انہیں تعجب ہو رہا ہے کہ جو آگ انہیں جلانے کے لیے لگائی گئی تھی اس میں سے یہ راکھ بن کر نہیں بلکہ سونا بن کر نکلے۔ انہوں نے چاہا تھا کہ تم شکاری بن جاؤ کیونکہ انہوں نے تم پر شکار کیا۔ انہوں نے چاہا تھا کہ تم جھوٹے بن جاؤ کیونکہ انہوں نے تم سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے چاہا تھا کہ تمہارا دل پتھر بن جائے، ٹھنڈا، بہرم، نفرت سے بھرا، تاکہ جو جلال اور عزت اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اس کے تم ناقابل ہو جاؤ۔ لیکن تم نے اس دنیا میں جہاں ہر دل سخت ہوتا جا رہا ہے اپنے دل کو نرم رکھا۔ سبحان اللہ، تم ایک زندہ گواہی ہو، تم اس بات کی دلیل ہو کہ اللہ جس کا ولی ہو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تم نے اس قسم کی روحانی قتل کی سازش کو بچا کر دکھایا ہے جس نے پورے خاندان تباہ کر دیے، اور تم ابھی بھی سانس لے رہے ہو، ابھی بھی امید رکھے ہوئے ہو، ابھی بھی وہ روشنی باقی ہے تم میں جسے اندھیرا سمجھ نہیں سکا۔ یہ تمہاری ربانی تصدیق ہے۔ جال بچھایا گیا تھا لیکن پرندہ اڑ گیا۔ شیطان اس بات سے تڑپ رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار، فساد اور گناہ کا ہتھیار، تم پر نہیں چلا۔ تم وہ ہو جو موت کے سائے کی وادی سے گزرے اور نہ صرف ڈرے نہیں بلکہ اس سائے کو بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ جس شخص کی مسکان کبھی اس کی آنکھوں سے نہیں ملی، اس نے سوچا تھا کہ اس نے تمہاری روشنی بجھا دی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ تمہارے اندر جو تیل ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی پہنچ سے پرے۔ تم نے راحت کے لیے اپنی غیرت نہیں بیچی، تم نے سکون کے لیے اپنا ایمان نہیں گروی رکھا۔ اسی لیے آج آسمان خاموش ہے، اس خاموشی سے جو حیرت اور تعجب کی ہوتی ہے۔ اب ایک گہری سانس لو، اس بھاری پن کو محسوس کرو جو تمہارے کندھوں پر رکھی ہے، وہ بوجھ جو تمہارا نہیں ہے، جو کوئی اور تم پر ڈال گیا۔ اب ہم بات کریں گے ان رازدار زخموں کی جو تمہاری روح کے کونوں میں پل رہے ہیں۔ تم بھیڑ میں بھی اکیلے کیوں محسوس کرتے ہو؟ یہی سوال تمہیں رات کو جگائے رکھتا ہے نا؟ اس کا جواب صاف ہے، تم ایک ایسی روحانی جنگ کی تھکان ڈھو رہے ہو جو تمہیں کڑوا بنانے کے لیے لڑی گئی تھی، لیکن اللہ نے اسے الٹ دیا اور اس نے تمہیں بہتر بنا دیا۔ شیطان صرف تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، وہ تمہیں بدلنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تمہارا وہ نرم دل پتھر بن جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ تم دنیا کو اسی شک اور نفرت کی نظر سے دیکھو جس سے تمہارے دشمن دیکھتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں سائے سے دیکھا، تمہارے ٹوٹنے کا انتظار کیا۔ انہوں نے تمہارا نام ان محفلوں میں برباد کرنے کی کوشش کی جہاں تم پہنچے بھی نہیں تھے، تاکہ تم آنے سے پہلے ہی رد ہو جاؤ۔ وہ چاہتے تھے کہ تم جذبات میں آ کر غلطی کرو، وہ چاہتے تھے کہ تم چیخو، بدلہ لو، ان کے جیسے بن جاؤ۔ لیکن جب انہوں نے سوچا کہ اب تم جواب دو گے، تم سجدے میں چلے گئے۔ جب انہوں نے سوچا کہ اب تم گرو گے، تم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اس بات نے آسمانوں میں ہلچل مچا دی، کیونکہ جو روحانی قوتیں تمہاری نسل کو برباد کرنے پر لگی تھیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ تم ابھی بھی کیسے کھڑے ہو۔ اب اس شخص کو دیکھو جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اسے روح کی آنکھوں سے دیکھو، وہ جو تھا اس سے۔ اس کی مسکان کبھی اس کی آنکھوں سے نہیں ملتی تھی، اور تم نے مہینوں پہلے ہی محسوس کیا تھا،
है ना? जब भी उसने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हारे अंदर कुछ चुभा। वो तुम्हारा फरासत था, वो रूहानी समझ जो अल्लाह ने तुम्हें दी थी, जो तुम्हें बता रही थी कि ये शख्स किसी और कुएं का पानी पी रहा है। वो तुम्हारी जिंदगी पर अल्लाह की मेहरबानी देखकर चल रहा था। उसने देखा कि रब की नेमत तुम्हारे साथ साए की तरह चलती है, और उसने सोचा अगर मैंने इसकी रूह तोड़ दी तो इसकी रोशनी भी चुरा लूंगा। उसने तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझा, तुम्हारी खामोशी को उसने दावत समझ लिया, और ज्यादा जुल्म की दावत। उसे लगा कि तुम अपना दफा नहीं कर सकते। उसे नहीं पता था कि जब अल्लाह किसी का वली हो तो उसका दफा खुद आसमान करता है। उसे नहीं पता था कि जब तुम खामोश होते हो अल्लाह तुम्हारी तरफ से बोलता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो वही उसके लिए काफी है। तुमने उस पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने तुम्हें बचाए रखा। लेकिन इस धोखे का एक असर अभी भी बाकी है। तुम हर वक्त चौकस रहते हो, हर कदम पर डरते हो कि कहीं फिर से कोई वार ना हो जाए। तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो तो पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हो, क्योंकि तुम्हारी रूह को इतने घाव मिले हैं कि अमन भी अब एक जाल जैसा लगता है। ये वो तकलीफ है जो कुरान ने बयान की है, उस दर्द में जब कोई करीबी दुश्मन बन जाए। सबसे गहरा घाव वो नहीं होता जो अजनबी देता है, सबसे गहरा घाव वो होता है जो उस शख्स से मिलता है जो तुम्हारे राज जानता था, जो तुम्हारी कमजोरियां जानता था, जिसने तुम्हारे साथ रातों को बातें की और फिर उन्हीं बातों को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लिया। उसने तुम्हारी बातें छुपकर फैलाई, तुम्हारी इज्जत को दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश की। उसने वो कीमत चुकाने की कोशिश की जो उसके बस की नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी इज्जत अल्लाह ने लिखी है, किसी इंसान की जबान से नहीं। लेकिन यहाँ वो मोजिज़ा है जिसने फरिश्तों को हैरान कर दिया। इतने झूठों के बाद, इस किरदार कुशी के बाद, इस माली तबाही के बाद, इस जज्बाती बेवफाई के बाद तुम बुरे नहीं बने। तुम्हारा हक था कि तुम ठंडे पड़ जाते, तुम्हारा हक था कि तुम दरवाज़ा बंद कर लेते हमेशा के लिए। तुम आसानी से अंधेरे की तरफ मुड़ सकते थे, लेकिन तुमने नहीं मुड़े। तुमने अपनी गैरत बचाई, तुमने अपना दामन अल्लाह के हाथ में रखा। तुमने तय किया कि तुम दुनिया की नज़र में मकबूल होने से बेहतर अल्लाह के नज़दीक महफूज रहोगे। तुम उन पत्थरों की एक जिंदा मिसाल हो जो दुश्मनों ने तुम पर फेंके और जिन्हें तुमने अपनी रूह की इबादतगाह बनाने के लिए इस्तेमाल किया। एक खास किस्म की थकान होती है जब हमेशा तुम ही वो होते हो जो बड़ा दिल दिखाता है। तुम थक गए हो माफ करते करते उन लोगों को जिन्होंने कभी माफी मांगी ही नहीं। तुम थक गए हो हमेशा वो बनते बनते जो सब कुछ संभाले रखता है जब बाकी सब बिखर रहे होते हैं। ये थकान कोई कमजोरी नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि तुम एक नस्लों पुराने बोझ को अपने कंधों पर ढो रहे हो, एक ऐसा बोझ जो तुम्हारे दरवाजे पर रोकने के लिए भेजा गया था। शैतान चाहता था कि तुम वो बन जाओ जो तुम्हारे माँ बाप थे, वो रूप जिससे तुमने वादा किया था कि कभी नहीं बनूंगा। वो चाहता था कि तुम्हारे माजी का जख्म तुम्हारे मुस्तकबिल की राह रोके। वो चाहता था जहर, नफरत, बदले की आग। लेकिन जांच से पता चलता है तुम्हारा खून अभी भी पाक है, तुम्हारी रूह अभी भी बेदाग है। तुमने अपने दिल की हिफाजत की है, क्योंकि दिल ही से जिंदगी की तमाम बातें निकलती हैं। उनकी हसद का मैल अभी भी तुम्हारे दामन से चिपकने की कोशिश कर रहा है। तुम अपनी कामयाबी पर खुद ही शक करते हो, क्योंकि इतने अरसे तक तुम्हें यही बताया गया कि तुम इसके लायक नहीं। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो कहती है शायद वो सही थे, लेकिन वो आवाज झूठी है। वो तुम्हारी आवाज नहीं, वो उन लोगों की आवाज है जो तुम्हारे अंदर बस गए और अभी तक किराया दिए बिना रह रहे हैं। आज उन्हें निकालने का वक्त है। अल्लाह ने तुम्हें जो दिया है वो उन्होंने दिया जो हर चीज का मालिक है और जिसके फैसले को कोई इंसान बदल नहीं सकता। तुम्हारी कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, तुम्हारा बचना कोई किस्मत नहीं, तुम्हारी रोशनी कोई हादसा नहीं। ये सब अल्लाह का लिखा हुआ है और जो अल्लाह लिख दे उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ता था। वो रिश्ता जिसमें तुम देते रहे और वो लेता रहा। तुमने उसे वक्त दिया, तवज्जो दी, राज दिए और उसने उन सबको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तुमने उसे तीसरा, चौथा, पांचवा मौका दिया क्योंकि तुम्हारा दिल नर्म है। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ये नर्म दिल बर्बाद होने के लिए नहीं दिया। उसने ये दिल तुम्हें इसलिए दिया कि तुम सही लोगों पर लुटाओ। तुम्हें हद लगानी होगी और ये हद कमजोरी नहीं, ये हद ईमान है। अल्लाह ने खुद फरमाया कि मोमिन बेवकूफ नहीं होता, एक ही बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। इसलिए अब से जब भी तुम्हारी रूह किसी के बारे में बेचैन हो, उस बेचैनी पर यकीन करो।
जब भी तुम्हारा दिल किसी के बारे में अलार्म दे, उस अलार्म को सुनो, और जब भी कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे, याद रखो कि उसे माफ करना और उसे अपनी जिंदगी में रखना दो अलग अलग चीजें हैं। अब सुनो और गौर से सुनो, क्योंकि जो अभी होने वाला है वो सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक ऐलान है, एक ऐसा ऐलान जो तुम्हारी नस्लों में पहले कभी नहीं हुआ। अल्लाह आज तुम्हारी उस रूह से बात कर रहा है जो धोखे के दौरान मरने लगी थी। वो हिस्सा जो हर रात छत को देखता था और सोचता था, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? वो दिल जिसने ठंडा होने से इनकार कर दिया जब दुनिया ने उस पर बर्फ डाली। आज उसी दिल पर अल्लाह की मोहर लग रही है। ये मोहर कोई मामूली मोहर नहीं, ये वो मोहर है जो सदियों में एक बार किसी रूह पर लगती है। ये मोहर कहती है, ये मेरा बंदा है, इसे छूने की कोशिश करोगे तो मुझसे उलझोगे। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैंने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया। ये वो मकाम है जहां तुम आज खड़े हो, अल्लाह की हिफाजत के साए में, और जो उस साए में हो उसे कोई छू नहीं सकता। तुम्हें हद लगानी होगी, और ये हद कमजोरी नहीं, ये हद ईमान है। अल्लाह ने खुद फरमाया कि मोमिन बेवकूफ नहीं होता, एक ही बिल से दो बार नहीं डसा जाता। इसलिए अब से जब भी तुम्हारी रूह किसी के बारे में बेचैन हो, उस बेचैनी पर यकीन करो। जब भी तुम्हारा दिल किसी के बारे में अलार्म दे, उस अलार्म को सुनो, और जब भी कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे, याद रखो कि उसे माफ करना और उसे अपनी जिंदगी में रखना दो अलग अलग चीजें हैं। अब सुनो और गौर से सुनो, क्योंकि जो अभी होने वाला है वो सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक ऐलान है, एक ऐसा ऐलान जो तुम्हारी नस्लों में पहले कभी नहीं हुआ। अल्लाह आज तुम्हारी उस रूह से बात कर रहा है जो धोखे के दौरान मरने लगी थी। वो हिस्सा जो हर रात छत को देखता था और सोचता था, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? वो दिल जिसने ठंडा होने से इनकार कर दिया जब दुनिया ने उस पर बर्फ डाली। आज उसी दिल पर अल्लाह की मोहर लग रही है। ये मोहर कोई मामूली मोहर नहीं, ये वो मोहर है जो सदियों में एक बार किसी रूह पर लगती है। ये मोहर कहती है, ये मेरा बंदा है, इसे छूने की कोशिश करोगे तो मुझसे उलझोगे। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैंने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया। ये वो मकाम है जहां तुम आज खड़े हो, अल्लाह की हिफाजत के साए में, और जो उस साए में हो उसे कोई छू नहीं सकता। हर वो आंसू जो तुम्हें रात के अंधेरे में गिराया, अल्लाह ने उसे महफूज किया। हर वो दुआ जो तुमने टूटे दिल से मांगी, अल्लाह के दरबार में उसे कबूल किया गया। हर वो रात जब तुम अकेले रोए और किसी को नहीं बताया, अल्लाह उस रात तुम्हारे करीब था, उससे भी ज्यादा जितना तुम सोच सकते हो। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, और जब वो मेरी तरफ एक बालिश आता है, मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ। तुम उसकी तरफ आते रहे, टूटे हुए, थके हुए, जख्मी, और वो हर बार तुम्हारी तरफ दौड़ा। वो आंसू जो तुमने रोए ज़ाया नहीं हुए, अल्लाह के यहाँ उन्हें एक ख़ास नेमत में बदला जा रहा है। वो तकलीफ़ें जो तुमने सही बेकार नहीं गईं, वो एक तरबियत थी, एक ऐसी तरबियत जो सिर्फ उन्हें दी जाती है जिन्हें अल्लाह बड़े काम के लिए चुनता है। अब देखो क्या होने वाला है। वो दरवाजे जो तुम्हारे दुश्मनों ने बंद किए थे, अल्लाह उन्हें उनकी चूलों समेत उखाड़ फेंकने वाला है। वो वसाइल जो तुम्हें बर्बाद लग रहे थे, अल्लाह उन्हें दुनिया के चारों कोनों से जमा करके तुम्हारे हाथों में देने वाला है। वो इज्जत जो उन्होंने तुमसे छीनने की कोशिश की, अल्लाह उसे इस कदर वापस करेगा कि जो तुम्हें गिराने निकले थे वो खुद तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर होंगे। और ये तुम्हारा बदला नहीं होगा, ये अल्लाह का इंसाफ होगा, और अल्लाह का इंसाफ किसी के बदले से कहीं बड़ा होता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक मेरे बाद आसानी है, बेशक मेरे बाद आसानी है। 2 बार फरमाया, इसलिए कि तुम्हें यकीन हो जाए, एक तकलीफ के बाद 2 आसानियां। ये अल्लाह का वादा है, और अल्लाह अपने वादे से कभी नहीं पलटता। तुम जिस तंगी में हो उसके बाद कुशादगी आने वाली है, तुम जिस अंधेरे में हो उसके बाद वो सुबह आने वाली है जो इतनी रोशन होगी कि तुम्हारी आंखें चौंध जाएंगी। तुम अब एक नए मौसम में कदम रख रहे हो। वो मौसम जब तुम्हें नज़रअंदाज किया गया वो ख़त्म हो रहा है। वो वक्त जब तुम्हारी कदर नहीं की गई वो गुजर चुका। अब वो दौर आ रहा है जब लोग पूछेंगे, इतने धोखों के बाद भी ये मुस्कुराता कैसे है, इतनी तकलीफ के बाद भी ये देता कैसे है, इतनी नफरत के बाद भी ये मोहब्बत कैसे करता है। और तुम्हारा जवाब होगा बस एक जवाब, अल्लाह।
अब एक काम करो, अपने हाथ उठाओ जहां भी हो और मेरे साथ ये दुआ करो, या अल्लाह, इस बंदे ने जो सहा वो तू जानता है, जो जख्म से मिले, जो आंसू इसने बहाए, जो रातें इसने अकेले गुजारी, तू उसका गवाह है। या अल्लाह, इसके सीने से वो भारीपन उठा जो इसका था ही नहीं, इसके दिल से वो कड़वाहट निकाल जो दुश्मनों ने डालने की कोशिश की, इसकी रूह को उस सुकून से भर दे जो दुनिया नहीं दे सकती। या अल्लाह, इसके माल में बरकत दे, इसकी सेहत में शिफा दे, इसके घर में अमन दे, और जिन्होंने इसे नुकसान पहुंचाया उन्हें तू देख, तू काफ़ी है और तू सबसे बेहतर हिसाब लेने वाला है। हर उस बद्दुआ को, हर उस जादू को, हर उस साजिश को जो इसके खिलाफ की गई, आज बातिल कर दे और इस बंदे के माथे पर अपनी मेहरबानी की मुहर लगा दे, जो कोई इंसान, कोई शैतान, कोई ज़माना मिटा ना सके। आमीन। अब सुनो, ये दुआ हवा में नहीं गई, ये अल्लाह के दरबार में पहुंची, और अल्लाह का दरबार कभी खाली नहीं लौटाता उसे जो टूटे दिल से आए। लेकिन अब तुम्हें एक काम करना है, और ये ज़रूरी है। अब से जब भी तुम्हारी रूह किसी के बारे में बेचैन हो, रुको। जब भी कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे, माफ़ करो, लेकिन दूरी बनाओ। माफ़ करना और भूल जाना दो अलग चीज़ें हैं। अल्लाह ने तुम्हें जो वक्त दिया है वो एक अमानत है, उसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी तबाही पर तुले हैं। तुम्हारा सुकून एक नेमत है, उसे उन लोगों के हवाले मत करो जो उसकी कद्र नहीं जानते। तुम अल्लाह के चुने हुए हो, और चुने हुए के लिए हर दरवाज़ा बंद नहीं रहता, हर जंजीर टूटती है, हर अंधेरा कटता है। तुम उस रोशनी की तरह हो जो तूफान में भी बुझती नहीं, और आज से तुम वो नहीं रहे जो थे। आज से तुम वो हो जो अल्लाह ने तुम्हें बनाने का इरादा किया था। सर उठाकर चलो, पीछे मत देखो, क्योंकि जो आगे है वो उससे कहीं बड़ा है जो पीछे छूटा। तुम आज़ाद हो, तुम महफूज हो, तुम अल्लाह की मोहर के साथ आगे बढ़ रहे हो, और अब दुनिया देखेगी कि अल्लाह अपने उस बंदे के साथ क्या करता है जिसने हर तूफान में भी उसका दामन नहीं छोड़ा। बस एक सवाल, नीचे कमेंट में बताओ वो कौन सा एक जुमला था जो आज तुम्हारी रूह तक पहुंचा।